Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start vector spaces. In physics and engineering, a vector is characterized by two quantities. A vector is characterized by two quantities, magnitude and direction, like length and direction. In case of scalar have just magnitude, and in case of vector have both magnitude and direction. By two quantities, length and direction, and is represented by a directed line segment. Now we define vector in a plane. A vector in a plane is represented geometrically by a direction line segment whose initial point is the origin and whose terminal point is the point x1 and x2 as shown in the figure. A vector in the plane is represented geometrically by a direction line segment whose initial point is the origin. Initial point is always origin, and whose terminal point is the x1 and x2, x1 comma x2 as shown in figure. This vector is represented by the same ordered pair used to represent its terminal point. Initial point is the origin and its terminal point x1 and x2. Like horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. Initial point is the origin, like 0 comma 0, and its terminal point x1 comma x2. X is a vector and x1 and x2 its elements. The coordinate x1 and x2 are called the component of the x. Two vectors in a plane u and v. U is equal to u1 comma u2 and v is equal to v1 comma v2 are equal if and only if u1 equal to v1 and u2 equal to v2. Two vectors in a plane u and v are equal if and only if the component are equal, u1 equal to v1 and u2 equal to v2. The term vector derived from a Latin word vectors, meaning to carry. The idea is that of you were to carry something from the origin to the point x1 comma x2. The trip could be represented by the directed line segment from origin 0 comma 0 to terminal point x1 comma x2. Vectors are represented by a lowercase letter set in boldface types such as u, directed line segment v, w, x. Example, vectors in a plane. Use directed line segment to represent each line vector in a plane. U is equal to 2 comma 3 and v is equal to minus 1 comma 2. Solution. To represent each vector, draw a directed line segment from origin to indicated terminal point as shown in figure. Like x-axis, y-axis. First में आपके पास x क्या है, like first x1 है आपके पास 2 और x2 है आपके पास 3. इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या है, ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या गया 2 3. लाइक x1 में आपके पास 2 है और x2 में आपके पास 3. लाइक x2 को आपने अलॉन्ग वर्टिकली देखा है तो आपके पास क्या है 3. माइंड में आप ये रख लें कि आपके पास x एक्सिस x आपके पास 2 है तो y आपके पास क्या है 3 है. ये आपके पास इसके टर्मिनल पॉइंट्स आ गए हैं. इनिशियल पॉइंट इसके क्या है, ओरिजिन पर है. v आपके पास जो वेक्टर स्पेस है आपके पास क्या है -1 और 2. लाइक x एक्सिस x आपके पास -1 है और y आपके पास 2 है. इनिशियल पॉइंट आपके पास ओरिजिन है 0 comma 0 और टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या आ गए हैं -1 और 2. The first basic vector operation in vector is vector addition, to add two vectors in plane at their corresponding component. अब आपके पास जो first basic operation है in vector के केस में वो आपके पास क्या है, इस vector addition to add two vectors in plane at their corresponding components. u plus v, u के आपके पास component है u1 u2. सॉरी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा u1 कामा u2 प्लस v1 कामा v2. तो दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करेंगे, u1 प्लस v1 कामा u2 plus v2. Geometrically, the sum of two vectors is the plane. In the plane is represented as diagonal of a parallelogram having u comma v as its adjacent sides as shown in figure. अब आपके पास क्या है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो आपके पास ओरिजिन है. टर्मिनल पॉइंट पे आपके पास आ जाता है u1 v1 कामा u2 v2. और यहाँ पर आपके पास u1 कामा v2 नहीं है, u1 कामा u2 है और आपके पास x एक्सिस v1 कामा v2 है. सम आपने क्या किया है,
दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया है u प्लस v, आपके पास u किसके इक्वल है u1 कामा u2 और वेक्टर v आपके पास है v1 कामा v2, दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो u1 प्लस v1 कामा u2 प्लस v2. A vector having no component is called zero vector. The zero vector is denoted by zero like O के साथ, और आपके पास क्या है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है. A vector having no vector is called zero vector. Adding two vectors in plane, find the sum of vectors u is equal to 1 comma u and v is equal to 2 comma minus 2. तो आपके पास अगर u और v को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 कामा u प्लस इंटू माइनस 2. फिर नेक्स्ट केस में आपके पास आ गया जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें u आपके पास जो गिवन है उसके कंपोनेंट है 3 और माइनस 2, और v के केस में आपके पास गिवन है माइनस 3 और 4. और नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन के केस में u को आप सपोज करें लेट u इज इक्वल टू आपके पास है 4, u प्लस v करते हैं तो 1 कामा 4 प्लस 2 कामा माइनस 2, 1 प्लस 4 4 प्लस इंटू माइनस 2, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो 3 कामा 2. लाइक आपके दोनों वेक्टर्स को जो ऐड करने से आंसर है वो आपके पास क्या आ गया है 3 और 2. आपके पास इसका जो u प्लस v में इनिशियल जो है वो आपके पास ओरिजिन है, जो टर्मिनल पॉइंट है वो 3 और 2 है. अब सबसे पहले आपके पास u1 और आपके पास आ जाता है u2, वो आपके पास क्या है u1 और u2 1 और 4 है, और v1 और v2 आपके पास 2 और माइनस 2 है. सेकंड केस में आपके पास 3 कामा माइनस 2 u के कंपोनेंट गिवन है, v के माइनस 3 कामा 2, दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो 3 माइनस 3 इस केस में आपके पास 0 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 2 0, तो आपके पास इस केस में इनिशियल पॉइंट तो आपके पास ओरिजिन और आपके पास जो फाइनल टर्मिनल पॉइंट है वो भी आपके पास क्या आ गया 0. द सेकेंड बेसिक वेक्टर ऑपरेशन इस कॉल्ड, अब आपके पास फर्स्ट जो ऑपरेशन था वो आपके पास क्या था वेक्टर एडिशन, जो आपके पास सेकेंड बेसिक ऑपरेशन है वो आपके पास क्या आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन. टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर v बाय अ स्केलर c, मल्टीप्लाई ईच ऑफ कंपोनेंट ऑफ v बाय c, डेट इज c इंटू v वेक्टर. अब v जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट है आपके पास v1 कामा v2, तो स्केलर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कंपोनेंट आपके पास जो उसके कंपोनेंट है कोऑर्डिनेट उसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है c मल्टीप्लाई वेक्टर v विच इज इक्वल टू c इंटू v1 कामा v2 cv1 कामा cv2. The word scalar is used to means a real numbers. Historically, this usage arose from the fact that multiplying a vector by a real number changes the scalar of a vector. जब भी आप multiply कर रहे होते हैं वेक्टर को by a real number के साथ तो आप change कर रहे होते हैं the scalar of a vector. For instance, if the vector v is multiplied by 2, the resultant vector is 2v, is a vector having same direction as v and twice the length. In general form, for a scalar c, the vector cv will be norm of c times as modulus of c as long as v. If c is positive then cv and v have same direction, and c is negative then cv and v have opposite direction. Same आपके पास अगर कोई वेक्टर है स्केलर अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर आपके पास स्केलर नेगेटिव है तो आपके पास वेक्टर और स्केलर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे. And c is negative then cv and v have opposite direction, this shown in figure. अब आपके पास क्या है c और v दोनों सेम, c greater than 0 है तो आपके पास इट्स मीन c पॉजिटिव है. अब आपके पास वेक्टर v और स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो फर्स्ट फिगर में ये आपके पास क्या आ गए हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में. सेकंड फिगर में आप देखें तो आपके पास क्या है c लेस देन 0 है, इट्स मीन c आपके पास क्या है नेगेटिव है. उस केस में वेक्टर तो आपके पास पॉजिटिव है, वो आपके पास लाइकर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो आपके पास स्केलर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास लाइकर है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. The product of vector v and the scalar is denoted, अगर आपके पास अगर जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का एंड स्केलर -1 इज डिनोटेड बाय -v विच इज इक्वल टू -1 इंटू वी. अब आपके पास वेक्टर का प्रोडक्ट और उसका स्केलर अगर -1 है तो इज डिनोटेड बाय -1 इंटू वी आर -v. द वेक्टर -v इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर v. द डिफरेंस ऑफ u एंड v इज डिफाइंड एज, अब आपके पास जब भी सम के केस में आपके पास एडिशन का साइन आ जाता है प्लस का, और डिफरेंस के केस में आपके पास माइनस का, u minus v vector is equal to u plus into minus v, and we can write as v is subtracted by it, like v आपके पास subtract हो रहा है, v is subtracted by u. Operation with vector in
plane provided v is equal to -2, 5 and u is equal to 3, 4 find each vector। अब आपके पास v भी गिवन है, u भी गिवन है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है 1 डिवाइडेड बाई 2v। तो v आपके पास गिवन है, वो आपके पास क्या है -2, 5। तो आप 1/2 आपके पास स्केलर है, ये आपके पास -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी होगा। लास्ट में जो आपके पास आंसर आ गया है -2 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास -1, 2 आ गए। फिर सेकंड में आपके पास बी पार्ट में आपने डिफरेंस फाइंड करना है, u माइनस वी। u आपके पास गिवन है 3 और 4, v आपके पास है -2, 5। तो आपके पास u गिवन है 3, 4 प्लस और माइनस में आपने v है, v आपके पास क्या है -2, 5। तो आपके पास क्या आ जाता है 3। अब यहाँ पर -2 और इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 आपके पास आ जाएगा और आपके पास 4 - 5 आ जाएगा। तो आपके पास 3 + 2 यहाँ पर आपके पास 3 + 2 5 हो जाएगा और आपके पास 4 - 5 -1 आ जाएगा। लास्ट में आपने कैलकुलेट करना है 1 डिवाइडेड बाई 2v + u। 1 डिवाइडेड बाई 2v ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका आंसर है -1, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u के साथ ऐड करेंगे तो u आपके पास क्या है 3, 4 -1 + 3 आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। और 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2 के अब आपके पास -1 + 2 के केस में आपके पास 3 के केस में 2 आंसर आ जाएगा और 5 डिवाइडेड बाई 2 + 4 के केस में एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आपने प्रॉपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है कि u v w आपके पास वेक्टर्स हैं इन अ प्लेन एंड लेट सी एंड डी बी स्केलर है। सबसे पहले आपके पास u + v, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं प्लेन में तो ये आपके पास क्या आ जाती है वेक्टर की एडिशन आ जाती है, इज अ वेक्टर इन अ प्लेन। और इस प्रॉपर्टी को आप नेम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास कब जस्टिफाई सेटिस्फाइड होती है, जब आपके पास दो वेक्टर्स इक्वल हो लाइक u + v इक्वल हो v + u के। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3, जब वेक्टर्स को आप कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, u + v ब्रैकेट क्लोज प्लस w इज इक्वल टू u + ब्रेसेस ओपन v + w। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी वेक्टर है उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो एडिटिवली लाइक 0 की एडिशन करेंगे तो आपके पास इक्वल होगा ओरिजिनल वेक्टर के। इन्वर्स के केस में अगर आपके पास कोई वेक्टर का वेक्टर है उसके कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं 3, अगर आपके पास u वेक्टर है आपके पास 3 और 2 और आपके पास उसके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे तो उस इन्वर्स उसका क्या होगा -u, u + इंटू -u इक्वल टू 0। एडिटिव इन्वर्स के केस में आपके पास जो आंसर आता है वो 0 वेक्टर आता है। किसी भी वेक्टर के साथ आप स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और स्केलर जो होता है वो आपके पास क्या होता है एनी रियल नंबर होता है। सी यू इज अ वेक्टर इन अ प्लेन। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सी आपके पास स्केलर है, यू और वी वेक्टर है तो आपके पास दोनों वेक्टर के साथ स्केलर जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा सी यू + सी वी। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग है, सी + डी दोनों आपके पास स्केलर है और यू आपके पास वेक्टर है तो दोनों स्केलर जो है वो आपके पास वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे सी यू + डी यू। फिर आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में c इंटू डी यू, सी ब्रैकेट डी यू इक्वल टू, अब c और d आपके पास स्केलर है, u आपके पास वेक्टर है। और लास्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लाइक 1 इंटू यू, 1 आपके पास क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इक्वल टू वेक्टर u। Vector in R power n. The discussion of vector in plane can now be extended to a discussion of vectors in n space. Like आपके पास vector in R power n, आपके पास Rn means n spaces. A vector in n space is represented by an order n tuple. For instance, an order triple has a form. अगर आपके पास R की पावर 3 है तो उस केस में आपके पास 3 डायमेंशनल आ जाता है लाइक x1 x2 x3 ट्रिपल। क्वाड्रल के केस में आपके पास आ जाता है x1 x2 x3 x4। x r की पावर 2 है तो उस केस में आपके पास x1 x2 आ जाता है, जस्ट r है तो x। अब आपके पास क्या है has a form. A vector in n space is represented by an ordered n tuple. For instance, an ordered triple has a form x1 x2 x3 and order quadruple
has the form x1, x2, x3, x4, and a general order n tuple has form x1, x2, x3 up to so on xn. The set of all n tuple is called n space and is denoted by r power n. अब आपके पास वन स्पेस है तो लाइक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, r पावर टू है तो टू स्पेस आ जाता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स. x1 के केस में जस्ट आपके पास रियल नंबर्स होंगे और उसमें आपके पास जस्ट वन स्पेस है. r पावर टू है तो इट्स मीन्स टू डायमेंशनल आ जाता है. r पावर थ्री तो लाइक आपके पास थ्री डायमेंशनल. r पावर फोर तो फोर. सेट ऑफ ऑल क्वाड्रपल्स ऑफ रियल नंबर्स, ट्रिपल ऑफ रियल नंबर्स. फिर आपके पास क्वाड के केस में, फोर के केस में आपके पास आ जाता है क्वाड्रपल्स ऑफ रियल नंबर्स. एन स्पेस के केस में एन टपल्स आ जाते हैं. As n tuples x1, x2, x3 up to so on xn can be viewed as a point r power n with the x as a coordinate, r as a vector in r power n with x's at its component. Thank you so much.